हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर करेंगे आज हम 12वां चैप्टर, जिसमें हम करेंगे आज एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी भारत में कृषि। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और कई मायने में हर जगह जो है अपना महत्व को ये रखेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is the most important major challenges faced by Indian agriculture. There is a most important question for the exam view. Major challenges faced by the Indian agriculture. If you look at the challenges faced by the Indian agriculture, we can broadly group them into two categories. One category belongs to be a problem that has been too long standing, and second category of problems is a new and has been to the emerging from the prevailing agriculture practice, system challenging climate and economy. Let us discuss major challenges in a detail. First of all here, stagnation in the production of major crop. There is important stagnations in the production of major crops. Production of some of the major staple food crops like rice, wheat has been stagnating from quite some time. And this is a situation which is wearing over agriculture and scientist is a planner and the policy maker. If this trend continues, this would be a huge gap between to the demand of ever growing population and production. Nobody want to India to go back to situation that was prevailing in our country prior to the Green Revolution, and try to find out that was the situation during the pre-Green Revolution period. The next year, high cost of farm input. The high cost of farm input is important. Over the years, rates of farms input have increased a manifold. From inputs include fertilizer, insecticide, pesticide, and HYV seed. There is the most important here. There is a fertilizer, insecticide, pesticide, HYV seed from a labor cost, etc. Such an increasing input low and mediums land holding farmer at the disadvantage. The next year, soil questions. There's important soil questions here. One of the hand, Green Revolution has a play a positive role in their reducing hunger for India. There is a reducing hunger from India. One of the other hand, it has also lead to be negative consequence. One of which is the soil excretions. A soil excretion means loss of nutrient in the soil from farming the same crop over again. The crop over and over again, and this usually happen in the rain forest. The important soil irrigations. And the next year, depletion of the fresh groundwater. Depletions of fresh groundwater here. The second major negative consequence of Green Revolution is depleting to the fresh groundwater.
You will remember that area where a green revolution was successful. It was due to the use of chemical fertilizer and irrigation. Most of the irrigation is a dry area of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh was carried out the exclusive use of groundwater. Today, fresh groundwater situation in this state is alarming. In the coming few years, if these types of farming practice continually, and these states are going for a phase of water famine, that's important. Population of fresh water, groundwater here. And the next year, advises the impact of the global climatic change. That is important. What's the impact of global climatic change? Among the various challenges, global climatic changes in the recent one. It has been predicted that its impact on agriculture would be immense. Since 70% of the Indian population is engaged in agriculture activities, you can imagine the consequence. It is predicted that due to the climatic change, temperature would be increased from 2 Celsius to 3 Celsius. There would be an increasing sea level and more intense a cyclone, unpredictable rainfall, etc. There is a major challenge here, and this challenge would be addressed adversely to the effect of the production of rice beet, and specifically is the rice the temperature in a winter would be affect production of wheat in North India. There is a most important impact of global climate change here. The next year, impact of globalization. There is impact of globalization is important here. You can see the effect of globalization on the farm sector in India. All developing countries has been affected by it. The most evidence effect is the sequence on the farmers is in income and the threat to be a visibility of cultivation of India. India is due to the rises of input costs as a falling output prices. This effect is a combination of the reduced subsidy and protection to the farmers and trade liberalization expose these farmers to be competitions from the highly subsidized production in the developed world. There is the impact of globalization. There is the most important on the agriculture. Globalization refers to be an increasingly global relationship of the culture, people, and economical activity. And subsidy. A subsidy is a money given to the government to be help support to a business or person. And liberalization mean the liberalization to be established any kind of economical activity at one's time and where is a country without anticipating and kind of so-called private and public restriction. There is a most important definition here: globalization, subsidy, and liberalization. That is important. And next year, providing food security. That is important. Providing food security here. Before the introduction of Green Revolution in India, we were not self-sufficient in terms of our food grain production. Due to the participation of India in 1947, the network of canal irrigation system, cotton belt and wheat was met by the best Pakistan, which is now Pakistan. There is a best Pakistan, which is now Pakistan, and similarly, their jute belt and rice bowl was awarded to the East Pakistan. This Pakistan is called bowl was awarded. The rice bowl, there is important, and which is now Bangladesh. With the introduction of Green Revolution, production of food grain increasing, sustainability and the India become self-sufficient. However, during the last one declared, the total production has become is a tenant. On the other hand, we have added another 16 to 18 million population over this period. Third, India has become self-sufficient. In a good, it is yet to be ensured food security, which is dependent upon accessibility, is affordability as well as nutritional value of food available.
One of the biggest challenge facing India, providing to food security to be its population. There is a most important and challenging facing for India here. The next year, farmer suicide. The farmer suicide is the most important for, according to the agriculture, the farmer suicide. Every suicide has a multiply of cases. But when you have nearly 2 lakh of them, it makes a sense for sick body common factor within that group. The suicide appear concentrated in the regions of high commercialization of agriculture and very high peasant death. Cash crop farmers seem it for a more vulnerable to suicide than those growing of food crops. At the basic underlying cases of the crisis are remained untouched. Commercialization of countryside, along with the massive decline in investment in agriculture, was the beginning of decline. Withdrawal of bank credit at the time of the sharings, input prices, and the crash in farm income compounded the problems. Shifting of millions from food crops to cash crop or cultivation had its own risk. Privatization of many resources has also compounded the problems. देखिए फसल के अगर बात करें और भारतीय कृषि की बात करें तो कहते हैं भारत कृषि शुरुआत से ही जो है बहुत ही समस्याओं से गुजरा है और कहते हैं भारत में बहुत से ऐसे ऐसे क्राइस देखे गए कृषि के अंतर्गत जिसका बखान करना संभव नहीं है। कहते हैं भारत में भुखमरी के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी और ये बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय कृषि के सामने प्रमुख चुनौतियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके बारे में हम यहाँ विचार करने वाले हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम भारतीय कृषि की चुनौती को देखें तो हम उन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कहते हैं काफ़ी समय से चलती आ रही बहुत सी समस्याएं प्रथम वर्ग में आती है और दूसरे वर्ग की समस्या नहीं है और इनका जन्म प्रचलित कृषि प्रथा, प्रणाली एवं बदलते जलवायु और अतंत्र से जो संबंधित है और मुख्य चुनौती भी जो है यहाँ पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा पहला जो मुख्य चुनौती है वो क्या है। पहले चुनौती के अंतर्गत बात करें हम तो प्रमुख फसलें हैं। देखिए कुछ प्रमुख खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव देखा गया है, यानी गेहूं और चावल के उत्पादन में देखा गया है कुछ ठहराव जरूर देखा गया है और ये इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक, आयोजक एवं नीति निर्माताओं के लिए चिंता का एक विषय बन के उभर के सामने आया है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन का अंतर बड़ा होता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो एक समय आएगा जहां पर हम इस जनसंख्या की भरपाई करने में असमर्थ हो जाएंगे। जिस तरह की स्थिति हरित क्रांति से पहले रही उस स्थिति में जाने के लिए कोई भारतीय नहीं चाहता है, क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति से पहले जो था बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी जहां पर भरपेट खाना भी व्यक्तियों को नहीं मिलता था। अब वही परिस्थिति आने वाला समय में दोहराई जा सकती है और कोई भी भारतीय नहीं चाहता है कि वो परिस्थिति दोबारा से आए। तो आज से ही आपको समझदार बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और जनसंख्या कंट्रोल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जनसंख्या कंट्रोल ना करें हरित क्रांति जो है फेल होने में अधिक देर नहीं लगेगा। हरित क्रांति से पहले अवधि की स्थिति का पता कीजिए और जानिए कि उस समय कितनी तरह क्राइसिसों का सामना जो है आम व्यक्तियों का करना पड़ा। उसके पश्चात अगर बात करें हम खेत निवेश में उच्च लागत, कहते हैं पिछले वर्षों में खेत निवेश के दर में कई गुना वृद्धि हुई है और इसके अंतर्गत उर्वरक, कीटनाशक, उत्तम किस्म के बीज, कृषि श्रम लागत आदि आते हैं और इस सब के कारण निम्न एवं मध्यम जोत वाले किसान ज़्यादा घाटे में होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आज के समय कृषि जो है बिना उर्वरक, बिना कीटनाशक, बिना उत्तम किस्म के बीज, कृषि श्रम आदि के बिना तो खेती करना आज के समय संभव ही नहीं है। और जो सबसे अधिक मध्यतम जो किसान होते हैं, निम्न और मध्य वर्ग किसान होते हैं, सबसे अधिक घाटे सहते हैं और कहते हैं उनकी तो कृषि करने में भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मृदा उर्वरकता की हार्स। देखिए एक और हरित क्रांति भारत ने भूख को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है, दूसरी ओर नकारात्मक परिणाम भी इसका देखने को मिला है। इसमें मृदा उर्वरकता का जो है हर्ष
लगातार होती ही चली जा रही है। मृदा उर्वरकता हर्ष का अभिप्राय है कि मृदा से पोषक तत्व की कमी जो एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार बार बोने से होता है, और यह आम तौर पर वर्षा वनों में होता है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हमारे लिए हो सकता है, और ये एक तरह का अभिश्राप है, क्योंकि मृदा का हर्ष होना एक अच्छा फसल उगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, और आने वाला समय में इसका बहुत ही दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि एक बार बार एक ही फसल न बोए, हम फसलों के जो है अदला बदली करके बो सकते हैं। इससे मृदा उर्वरकता के हर्ष में कमी भी हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मीठा भूमिगत जल की कमी। हरित क्रांति द्वारा दूसरे प्रमुख नकारात्मक परिणाम जो है मीठा भूमिगत जल की कमी है। आप जानते हो कि अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है मीठा पानी की जो भूमिगत पानी बहुत ही कमी है। ऐसे 75% वाटर ही हमारे पृथ्वी पर ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन देखा जाए तो पीने योग्य सिर्फ 3% पानी ही है। और आपको याद होगा कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल रही थी वो रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के उपयोग के कारण था। यानी रासायनिक उर्वरक के कारण और सिंचाई के कारण ही हमें हरित क्रांति को छू पाए। और वो क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग कर सिंचाई के द्वारा हरित क्रांति के सफल बनाया गया। यानी पंजाब हरियाणा में जो है भूमिगत जलों का उपयोग बेखूबी की गई और हरित क्रांति का प्रयोग जो है हम प्राप्त कर सके। और इन राज्यों में भूमिगत जल की स्थिति और भी भयानक स्थिति पैदा होती चली जा रही है। और इसी प्रकार खेती आगे आने वाली कुछ वर्षों तक जारी रही तो इन राज्यों में जल का अकाल पड़ जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, यहाँ जल का अकाल पड़ने में कोई लंबा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आज के समय सरकार की नीति भी बदल गया है। आज सरकार ने पानी फ्री किया है तो लोगों की मानसिकता जो है बिगड़ गई है। आज पानी जो है मतलब का बह रहा होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं कहूँ कि अगर पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अगर आप चले जाकर देख लें तो यहाँ पर जो है कहते नगरीकरण के कारण इतने बोर लगाए गए हैं कि धरती के जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आने वाला चंद सालों में ही 100 मीटर जो है नीचे चली जाएगी। तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति आने वाला है, और कहते हैं पंजाब के क्षेत्रों में भयानक अकाल भी पड़ने वाला हो सकता है अगर इसे समय रहते नहीं समझा गया और पानी का महत्व को नहीं जाना गया। तो देखिएगा पानी की कितनी किल्लतें उठानी पड़ सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मीठा जो भूमिगत जल की कमी है वो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी कर सकती है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में। उसके पश्चात है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अब कौन कौन से प्रतिकूल प्रभाव है। कहते विभिन्न चुनौतियों में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन नवीनतम है, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और यह भविष्यवाणी की गई है कृषि पर इसके प्रभाव असीम होगा। यानी सबसे अधिक जो है वैश्विक जलवायु के परिवर्तन का कृषि पर पड़ेगा, और 70% भारतीय लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। अब इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी, और हो भी चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं। हर राज्य में देख लीजिए पिछले दिनों से तुलना में अब के सालों में जो है 2 से 3 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ ही गया है। और देखते ही हो कि सब दिन जो है ये नए रिकॉर्ड बना रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि होगी और अधिक तीव्र चक्रवात आएगा। और जनरली आज के समय में देखिए चक्रवात भी आ रहा है। बेशक हमें इसके पता लग जाता है, लेकिन हम इसको नुकसान को रोक नहीं सकेंगे। वर्षा की भविष्यवाणी असंभव होगी। भारत के तटवर्ती भागों में समुद्री जल प्रवेश और चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि के कारण चावल का उत्पादन काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये आने वाला समय में बहुत दुखदायी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है भारत के निवासियों को, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पाए हैं आज भी किसी प्राकृतिक चीज़ों का महत्व को। जब तक आप प्राकृतिक चीज़ों का महत्व नहीं समझिएगा, आप इसको बचा भी नहीं सकिएगा और ना ही इसका महत्व को जान सकिएगा। तो प्राकृतिक चीज़ों का विशेष अध्ययन कीजिए और इसके बारे में वास्तविकता इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वैश्वीकरण का प्रभाव। देखिए, भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में आप देख ही सकते हो। सभी विकासशील देश इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों की घटती आय है। और भारत में खेती की
निर्भरता पर जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और इसका मुख्य कारण है लगातार खर्च में वृद्धि और निर्यात की कीमत में कमी, क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि हम निर्गत कीमत नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में जो है दूसरे के सामान खरीदने की एक होड़ लगी हुई है। अपने देश में विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के लोगों को रोजगार देना भारत की एक परंपरा बन गई है। भारत के नौजवानों को जॉब देना भारत में सुनिश्चित नहीं की गई है और विदेशों से सामान खरीदना आम बन गई है। कहते हैं अगर यही बात अगर APJ अब्दुल कलाम जी सोचते तो शायद मिसाइल मैन के नाम से नहीं जाने जाते और हमारे देश में मिसाइल का विकास नहीं होता। लेकिन आजकल के गवर्नमेंट देखिए, दूसरे के हथियारों को खरीदते हैं, दूसरे के से हाथ मिलाते हैं और ये नहीं जानते उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चरित्र कैसा है और दूसरे देशों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। जो दूसरे देशों के साथ बिहेव करते हैं वो भारत के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेतावनी है आने वाला समय के लिए। इसलिए हमें अपना हथियारों को स्वयं ही विकसित करना चाहिए। और त्रिपाण स्टडी सेंटर तो ये भी कहता है कि हथियार हमारे लिए क्यों, हम तो कहते हैं दोस्ताना हमारा सोच है, दोस्ताना हमारा माहौल है, तो हथियार किस लिए? कहते हैं बारूद पे बैठ के हम शांति की बातें कभी नहीं कर सकते। तो वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहा जाता है आर्थिक सहायता की कमी और किसानों की सुरक्षा का मिला जुला प्रतिबिंबन होता है। सरकार की तरफ से बेशक कुछ सहायता दी जाती है, लेकिन वो सहायता उनके लिए कहते हैं ऊँट के मुंह में जो है राई के समान मानी जा सकती है। व्यापार उदारीकरण के कारण अन्य देशों के साथ किसानों की प्रतिस्पर्धा हो जाती है, जबकि विकसित देशों में उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो देखिए, विकसित देशों में आर्थिक सहायता देना ये प्रावधान किया गया किसानों के लिए। अब देखिए कुछ डेफिनेशन यहाँ पर है। सबसे पहले वैश्वीकरण। देखिए, वैश्वीकरण संस्कृति, जनता और आर्थिक गतिविधियों का विश्व स्तरीय जो है बढ़ते संबंध है। व्यवसाय या व्यक्ति जनता की मदद के सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन को आर्थिक सहायता कहते हैं। यानी वैश्वीकरण का मतलब होता है कि संस्कृति, जनता और आर्थिक गतिविधियों को विश्व स्तरीय बढ़ाने का संबंध। और वही आर्थिक सहायता की बात करें हम, तो व्यवसाय या व्यक्ति जनता की मदद के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन को हम आर्थिक सहायता कहते हैं। और देश के किसी भी भाग में किसी भी समय किसी भी तरह की आर्थिक जो है गतिविधियाँ उदारीकरण के अंतर्गत आता है और इसके लिए कभी भी तरह से सरकार या गैर सरकारी प्रतिबंध आमतौर पर नहीं होती है। तो यहाँ वैश्वीकरण, आर्थिक सहायता और उदारीकरण का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन दिया गया है, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है खाद्य सुरक्षा। देखिए, भारत में हरित क्रांति के शुरुआत से पहले हमारे खाद्यान्न प्राप्त नहीं थे। यानी हरित क्रांति से पहले हमारे पास इतनी मात्रा में जो खाद्यान्न नहीं थे जितनी होनी चाहिए। और 1947 में भारत के विभाजन के कारण नहर सिंचाई प्रणाली, कपास की पट्टी और गेहूं का कटोरा पश्चिम पाकिस्तान को चला गया। जिसे हम गेहूं का कटोरा कहते हैं, पश्चिम पाकिस्तान को चला गया, जो अब पाकिस्तान के इस नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार जूट की पट्टी और धान का कटोरा पूर्वी पाकिस्तान को चला गया, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यानी देखा जाए जो भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास है। हरित क्रांति की शुरुआत के साथ अनाज उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और भारत पर्याप्त अनाज पैदा करने भी लगा है। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान कुल उत्पादन स्थिरता हो गया है। और दूसरी ओर इसी अवधि में 16 से 18 करोड़ आबादी बढ़ गई है। अगर आज देखा जाए तो आबादी में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो समझ सकते हो कि आने वाला समय में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है ये बढ़ते हुए आबादी को। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन भी जरूर गया है और इस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है, क्योंकि यह उपलब्ध पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और सततता पर निर्भर करता है। भारत के लिए अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बड़ी चुनौती में से एक है। और भारत में चुनौती रहेगी भी, क्यों नहीं रहेगी? आम व्यक्ति जो नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, कोई पार्टी में आप चले जाइए, खाना को तो आप ऐसे वेस्ट करोगे जैसे कभी आपने देखा भी ना हो। खाना होता है इतना खाना और ले लेते हो, पूरे प्लेट भर लेते हो। तो खाना की क्यों नहीं कमी होगा भारत में? कहते हैं जब तक हम बूंदे बूंदे अगर को हम नहीं तरासेंगे तब तक बचाव नहीं होगा। और समझदारी ये नहीं होगा कि आप एकाएक ही बहुत सारे बचा लो। कहते हैं थोड़ा थोड़ा से ही बहुत बनता है। तो अपनी आदतों को चेंज कीजिए और भोजन की सार्थकता को समझिए कि भोजन इंसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी है। अगर शायद महत्वता नहीं समझिएगा तो आने वाला समय में मुसीबतों का सामना ही करना पड़ सकता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है किसानों की आत्महत्या। देखिए किसानों की आत्महत्या ये भारत के लिए बहुत दुखदायक परिस्थिति है, जहाँ पर किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं और कारण ये बनता है कि वो अपने उपज के लिए जो भी कर्ज लेते हैं वो समय पर नहीं चुका पाते हैं और उनका मानना होता है कि अगर वो आत्महत्या कर लेंगे तो सारे कर्ज से जो है उनको छुटकारा मिल जाएगा। और यही सोच विचार के कारण भारत में न जाने कितने किसान ने आत्महत्या कर लिया, जो सही नहीं है। कहते हैं बुरे वक्त तो आते ही हैं और बुरे वक्त में जो कहते हैं हार जाता है वो जीवन में कामयाबी कभी भी लक्षण नहीं देख सकता। तो किसानों की आत्महत्या बहुत ही दुखदायक परिस्थिति। कहते हैं हर एक आत्महत्या के अनेक कारण होते हैं, लेकिन जब लगभग 2 लाख आत्महत्या का सवाल हो तो उससे बड़े समूह में कारण का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। आत्महत्या कृषि की उच्च व्यवसायीकरण और बहुत उच्च किसान ऋण के क्षेत्रों में केंद्रित दिखाई देता है, यानी व्यवसायीकरण सबसे बड़ी समस्या है। खाद्य फसल उगाने की तुलना में नकदी फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या के चपेट में ज़्यादा आता है, क्योंकि खाद्य फसल उगाने के जो है देखा जाए तो वो भोजन के रूप में होता है और इसका कम उनको जो है पैसे मिलते हैं। वही नकदी फसल उगाने वालों को अधिक कीमत मिलते हैं और इन्हीं कारणों से जो है आत्महत्या का कारण बन जाता है। अभी भी संकट के बुनियादी अंतर्निहित कारण अछूता ही है और कृषि निवेश में भारी गिरावट के साथ साथ देश के व्यवसायीकरण के कारण आत्महत्या काफ़ी बढ़ी है। भारत में जो व्यवसायीकरण की नीतियों को अपनाया गया है उसके कारण जो है आत्महत्या की संख्या अधिक बढ़ी है और बढ़ते हुए जो है लागत खर्च एवं घटते कृषि आय के समय पर बैंक ऋण की वापसी आत्महत्या की समस्या और गंभीर एवं जटिल बना दिया है। करोड़ों लोगों का खाद्य फसलों से नकदी फसल की ओर जो है बदलाव का अपना ही जोखिम है और जो है कई संसाधनों का निजीकरण भी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सरकार ने बहुत ही यहाँ चालाकी का काम किया कि बहुत से क्षेत्रों को जो है निजीकरण कर दिया है और जिसके कारण आम किसानों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार का यहाँ पर रोल किस प्रकार की है। देखा जाए तबाही 5 बड़े राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ केंद्रित है। जो कि तबाही जो है जो आत्महत्या की है देखा जाए तो उसको 5 ही क्षेत्रों को जो है केंद्रित किया गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही केंद्रित है। 2003-2008 की अवधि के दौरान सभी खेत आत्महत्या के 2/3 मौतें इन राज्यों में ही हुई हैं। यानी देखा जाए तो यही ऐसे राज्य जहां पर जो है 2/3 मौतें इन्हीं 5 राज्यों में हुई है। कुछ प्रमुख जो है उत्तरदायी कारणों में से ऋणग्रस्तता, उपज की असफलता तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में हर्ष है। सामाजिक स्थिति में गिरावट, स्थानीय सरकारों द्वारा उच्च दर पर कर्ज और परिवार में पुरानी बीमारी, पीने की आदत किसानों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है और ये इतनी बढ़ गई है कि आने वाला समय में और भी दुखदायक परिस्थितियों का सामना किसानों को पड़ सकता है। और इवन किसानों ने इससे बचने के लिए खेतों को जो है बेच दिया है। अब समझिए खेतों को अगर इसी तरह से वो बेचते रहें और उसमें जो है घरें बनाते रहें तो एक समय आएगा जब हमारे उपज के लिए कोई भी ज़मीन बच नहीं जाएगा। तो वो समय बहुत ही कष्टदायक होगा हर एक नागरिक के लिए, इसलिए समय रहते ही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी कृषि के अंतर्गत और हमने कृषि के अंतर्गत हर एक पहलू पर विस्तार पर चर्चा किया और हर एक बात जानने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आप त्रिपाण सेंटर को दिल से हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो तो एक ही प्रावधान है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितना इस वीडियो को फैलाइए, जितना दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का अभिलाषा है और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, आप अगर मेरे लिए कीजिएगा तो आपके लिए भी समय समय बहुत कुछ किया जाएगा जो आपकी विकास के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद लीव कर जाते हो और बाद में मान लीजिए मैंने कोई अच्छा सा वीडियो डाला आपके लिए महत्वपूर्ण रहा और आपके एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ वीडियो डालता ही रहता हूँ और जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपके मतलब का रहेगा तो आप देखिएगा, नहीं रहेगा तो उसको लीव कर दीजिएगा, लेकिन वो तब होगा जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अच्छे काम के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ता है और आप अभी भी सोच में पड़े हुए हो। जो रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।